Okay. So if it is a known holiday, then before day. That means the 3/10 will be the due date. If it is unknown, that means there are some strikes, lockdowns which were not planned. Then after the day, that is 5th October will be considered as the due date of the bill. Okay. So now, if you have understood this concept, then you can raise your hands. Or let me tell you once again, I will explain all these points. See, what happens in case of a bill? There will be a creditor who will be performing a credit sale with a debtor. Okay, एक creditor होता है जो क्रेडिट सेल्स किसके साथ परफॉर्म करता है? डेटार्स के साथ. तो अर्लियर उसके पास वो क्या भेजता था? गुड्स भेजता था और साथ में इनवॉइस भेजता था. अब लेकिन वो क्या भेजेगा? गुड्स भेजेगा और उसके साथ एक क्या भेजेगा? बिल, एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जिसमें वो सामने वाले पार्टी को ऑर्डर करता है. क्या ऑर्डर करता है? आई ऑर्डर यू टू पे सर्टन, जो भी उसका प्राइस होता है, आफ्टर अ सर्टन डेट. उनके बीच में जो एग्रीमेंट रहता है, दैट मींस 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, आई सेड अप टू 1 year you can, राइट? तो up to you can take a period up to 1 year. तो आप जो भी पीरियड होता है, you can draw for that. Generally they will not be drawn for more than 6 months. तो 6 months से ज्यादा तो होते नहीं, फिर भी हम theoretically बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस 6 महीने तक वेट नहीं करता है पैसों के लिए. Then तो डेटार उसको एक्सेप्ट करता है, राइट? याद रखिए, एक एक्सेप्टेंस और ड्रॉइंग कैसा होता है? जब ये बंदा ड्रॉ करता है तो इसको अपना साइन देना पड़ेगा, और बाद में ये बंदा जब एक्सेप्ट करता है तो इस पर इसका साइन होना जरूरी है. ओके, तो जब ये दोनों साइन करेंगे, कौन? क्रेडिटर एंड डेटार, राइट? तो तब ये जो पीस ऑफ पेपर है, याद रखिए, ये साइन करेगा तो भी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता है. जब ये साइन करता है और साथ में ये भी साइन करता है, तो तभी आप उसको क्या कह सकते हो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह सकते हो, अदरवाइज आप उसे नहीं कह सकते हो, राइट? देन बाद में क्या होता है? इसका जो पीरियड होता है, दैट पीरियड शुड बी स्टिपुलेटेड इन द बिल. मतलब वो बिल में लिखना जरूरी है कि वो बिल कितने महीने के लिए या कितने दिन के लिए है. दिन में भी हो सकता है, राइट? सो लेकिन जो भी हो, डेज हो या मंथ्स हो, लेकिन याद रखिए, हर बिल के मैच्योरिटी के लिए, मैच्योरिटी डेट पर 3 दिन का ग्रेस डेज किया जाता है. इसीलिए जब भी वो ड्यू डेट ऑफ द बिल निकाला जाता है तो ये 3 days ऐड करके ही निकाला जाता है. अगर 3 days ऐड करने के बाद अगर जो दिन आ रहा है उस दिन बैंक की छुट्टी है, तो याद रखिए वो ड्यू डेट जो है वो या तो बिफोर रहेगा या आफ्टर रहेगा. द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी आइदर बिफोर और आफ्टर, राइट? So if it is before, when it will be before? When the holiday is known to us. For example, we don't know that we know that the banks are going to remain closed on 15th of August, 26th of January, on Ganesh Chaturthi. These all are known holidays to us. So if the due date falls on those particular dates, then the due date will be before. And if any like uncertain events happen, like strikes, lockdowns and all, so at that time the due date will be plus 1 day. Okay, so clear with this point? If yes, you can raise your hand now. Whether Mansi is not attending today's class, Mansi nahi hai aur Vishal nahi hai. Anyone who can just intimate them? Mansi and Vishal, they are missing today's class. If anyone knows the reason why they are not attending, just text me. Even Vishal is not there. Yesterday he was there.
Okay. Now let's continue. Okay, so mine C I came to know. Anyone who is in contact with Vishal, just because you will miss the link if you do not attend the class, or just check whether Vishal has got the link or not. Now, let's continue. Then, I will tell you. Now, you see, you keep your WhatsApp on, right? I want you to interact because now we started it in the PUC that you will be interacting with me during the class through WhatsApp. So keep the group on. So you will be replying to my question. You tell me when the bill is made, it will be sent to debtor, right? And debtor will sign that. Will he return back to the creditor or he keeps it with himself? Anyone? I want you to answer. Answer fast. Whether, very good. He will return back to drawer. I'm unable to recognize. Anurag, I have able to, like, who is Meera Poddar here? Sir, Amita, sir. Very good. Sumant, right. Nagraj, Anurag, fantastic answer. Right. ये मीरा पोद्दार किसका नाम है देखिए थोड़ा. Anybody who can introduce so that I can save the number? Amita, sir. Oh, Amita. Sorry. Amita, right. It is right answer. हाँ. Amita Poddar. Yes. Very good. Now let's see. तो ये हो गया. अब हमको मालूम है कि बिल किसके पास है, आप बताइए. ऑल ऑफ यू, बिल किसके पास है? अब बिल है हमारे क्रेडिटार के पास में, या हम बोल सकते हैं ड्रॉवर, बराबर. तो बिल तो अभी ड्रॉवर के पास है. अब हम देखेंगे कि इन सब चीजों के लिए, राइट, वेरी गुड. नाउ लेट मी टेल यू, आपको मैं दो टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं यहां, राइट. वो है, याद रखिए, ये आपको मालूम है कि क्रेडिटर्स क्रेडिट पे गुड्स बेचा था किसको? ड्रॉवर को, राइट. तो ड्रॉवर को क्या करना है? बाद में पैसा देना है. कब? जब बिल का ड्यू डेट है. तो जब बिल डेट पर, ये आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बेसिक्स मेरे को सारे पढ़ाने पड़ते हैं, राइट. तो याद रखिए, तो जब बिल उसके पास जाएगा तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं? दो ऑप्शन हैं. या तो उस दिन पर वो पैसा दे या ना दे, राइट. सो पे एंड नॉट टू पे. ओके. सो जब बिल को पेमेंट दिया जाता है तो इसका मतलब होता है उसने, आपने बिल का सम्मान किया और आपने उसको पेमेंट किया. इसीलिए उसको ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज ऑनर ऑफ बिल. ऑनर ऑफ बिल कहा जाता है. अगर वही वो बिल पे नहीं करता है तो इट विल बिकम डिसऑनर. आ रहा है बात समझ में आपको? ऑनर एंड dishonor. So what is dishonor? If the bill is not paid on the due date, it is called as dishonor. And if the bill is, we call it as met. आपको remember, किसी को याद है मैं word use करता था MET, met. If the bill is met on due date, it is called as honor. And if the bill is not met on the due date, it is called as dishonor of the bill.
You remember this word met? Yes, very good. So ये एक आपको याद रहने दीजिए. तो हर बिल जो है उसकी एक कहानी होती है. तो आप देखेंगे अब बिल की कहानी में कितने लोग आएंगे, राइट? या ये कैसा होता है, इसमें जैसे वो फिल्में बनती है ना ट्रायंगल लव स्टोरी बोल के, वैसे यहां भी कुछ ऐसा होता है, राइट? तो हम देखेंगे. तो याद रखिए ये 2 एंट्री मैं आपको पहले लिख के मैं डिलीट करना चाहता हूं, राइट? आप सब लोग ये आपके पास ये फर्स्ट ईयर में भी मैंने लिखा था शायद, ये एंट्रीज आपके पास है, राइट? तो इसीलिए मैं पहले बोलता हूं जब भी क्रेडिट सेल, याद रखिए ये बिल का जो साइकिल है, राइट? ये बिल का जो साइकिल है, जैसा आपका साइकिल मोटरसाइकिल अपने घर से चालू होता है, वैसे जो ये बिल का जो साइकिल है वो हमेशा क्रेडिट सेल से चालू होता है. किससे चालू होता है? क्रेडिट सेल्स. ओके. और जब क्रेडिट सेल्स होता है, क्या होता है? क्रेडिट सेल्स. तो जर्नल एंट्री होता है, क्योंकि ये अभी देखिए ये जो भी मैं बात कर रहा हूं, these entries we are passing in the books of drawer. I want you to note them as in the books of drawer. Okay, the books of drawer, when there will be credit sales, the journal entry we will pass is debtors account debit to sales account. आप लोग एडवांस में भी आंसर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में तो बहुत अच्छा लगेगा, राइट? आई वांट यू टू बी इंटरैक्टिव. देखिए याद रखिए जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे ना, तो ऐसे खत्म करना है तो फिर इसको रिवीजन करने की ज्यादा नौबत ना है, बिकॉज हमको सबसे अच्छा सीखना है, राइट? तो इसीलिए मैं आपको बोला था व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू एंटायरली रिलाई ऑन दिस क्लासेस, बिकॉज इनको ऐसा करना है कि बाद में हमारे यहाँ एक भी डाउट ना हो, ऐसे हमको जीना है, राइट? सो have you understood this journal entry, or you want me to explain? When we sell the goods there will be increase in assets, so that's why there will be increase in assets, so debtors should be debited, and there will be increase in revenue, that's why sales will be credited. It's a very common explanation which I have given you so many times in your PUC first year, right? Next what happens is, now once the bill, I said when the sales is done, the next thing is you will be sending the bill, right? Remember, when you send the bill, that will not amount to any transaction. Question arises, sir, how it doesn't amount to any transaction? Because when I send the bill, there will not be any exchange of money or money's worth between two entities. Then there is no question of passing the journal entry. Journal entry can be passed only when there is an exchange of money or money's worth between two entities. I hope you remember this, right? Now, next. When the bill is accepted, what happens? When the bill is accepted, the journal entry we pass is bills receivable account debit. Bills receivable account debit to debtors account. Bills receivable account debit to debtors account. Now what is this? I said like this was increase in asset and this is increase in revenue. Now here what happens, ये बहुत समझने की कोशिश करिए. यहाँ CA फाउंडेशन में कुछ भी रट्टा मत मारिए, सब कुछ सीखना है. याद रखिए सब कुछ सीखना है, कुछ भी हम मिस नहीं कर सकते हैं यहाँ, राइट? तो याद रखिए जब ये डेटार्स जो है, राइट, ये क्या कर लेता है, एक बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है कि मेरा जो काम है वो खत्म हो गया, अब आपको पैसे किससे रिसीव करने हैं? बिल्स रिसीवेबल. अल्टीमेटली देने वाला बंदा यही है, याद रखिए. अल्टीमेटली पैसे किससे आने वाले हैं? डेटार से. पर क्या होता है, पहले हम उसको डेटार बोल के कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम पैसे क्लेम करने वाले हैं ना, तो वो ये बन जाता है बिल्स रिसीवेबल. आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट?
तो डेटार बोलता है कि मेरा डेटार का जो मतलब जो डेटार से पैसे आने वाला था वो अब नहीं आएगा, तो इसीलिए दैट विल बी डिक्रीज इन डेटार्स, एंड जो पैसे अब कहां से आएंगे, बिल्स रिसीवेबल। रिमेंबर, इसीलिए इन दोनों को ऐड करके क्या बनाया गया था, डू यू रिमेंबर अ हेड कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि ये दोनों रिसीवेबल ही है। कौन, बिल्स रिसीवेबल और डेटार्स। एनीबॉडी हु रिमेंबर्स दिस हेड ट्रेड रिसीवेबल्स कहां आता था, बताइए आप, एनीबॉडी, फास्ट टाइप कीजिए, और you if you want you can answer through the voice message also. वॉइस मैसेज से तो आप बहुत फटाफट आंसर कर सकते हैं, बिकॉज वो तो क्लास में आंसर किए जैसा ही लगेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। सिक्का तो वही है, जिस सिक्के का नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। एक तरफ है डेटार, दूसरी तरफ है बिल्स रिसीवेबल। अरे यार बहुत लेट कर रहे हो आप लोग टाइप करने में, फटाफट फटाफट। चुप, ऐसा ही वॉइस है, वो लॉन्ग प्रेस करके इमीडिएटली आंसर कर दो ना, हो जाएगा। आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, बट स्टिल आपसे जब आंसर आएगा ना तो सबके दिमाग में एक, हाँ यस, जल्दी जल्दी। कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, मतलब आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। सब लोग टाइपिंग टाइपिंग आ रहा है सबका। You want me to repeat the question? So my question is, ये दोनों डेटार्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल के अंडर आते थे। ये आप बताइए कौन से चैप्टर में हमने सीखा था पीयूसी में कि ये दोनों ट्रेड ये रिसीवेबल के अंडर आते हैं? Very good. Financial statements of a company. Very good, very good. Financial statements, आपने बिल्कुल सही कहा, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने सीखा था कि ये ऐसा होता है ट्रेड रिसीवेबल। और किसी ने आपको पूछा, कभी ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होता है कि ये भी पैसे डेटार्स ही देने वाले हैं, ये भी पैसे डेटार्स देने वाले हैं, तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? याद रखिए, बिल्स रिसीवेबल जो है, इनके अगेंस्ट आपके पास जो है एक बॉन्ड पेपर है, मतलब एक स्टैम्प पेपर है जिसमें आपको ये श्योर है कि पैसे मिलने वाले हैं, और ये वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट आपके पास कोई लीगल इक्विपमेंट नहीं है, पर यहां आपके पास है। नेक्स्ट, अब आएंगे ये दोनों कॉमन एंट्रीज। हैव यू नोटेड डाउन दीस टू जर्नल एंट्रीज? इफ यस, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल erase and I will go to the next entries in the books of Drober. Very good. Now, याद रखिए, ये जो बिल है, ये बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? व्हाट इज दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो है जिसको आप फ्रीली किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं अगर चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है, आप किसी को कुछ एक्सचेंज करना चाहते हो, इट विल बी लाइक, आप बोल सकते हो कुछ मनीज वर्थ है जिसको आप किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। दैट इज लाइक चेक है, आपको मालूम है चेक, यू आर अवेयर, चेक को आप किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। पर ये कैसा होता है, ये जो
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये चेक ये सब चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो जिनको क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। नाउ ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम ये चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, मतलब व्हाट ऑल वी विल बी डूइंग विद इट। See, one thing I will not be discussing it because you will not be doing anything it with. What you will be doing is, the first thing is you can retain it. That means आप ड्यू डेट तक वेट कर सकते हैं। वो डेटार बोला है ना कि 3 महीने बाद पैसा देने वाला है, चलो 3 महीने तक रुक जाते हैं, अब मेरे को भी कुछ जल्दी नहीं है, तो 3 महीने तक आराम से बैठेंगे और बाद में पैसे लेंगे। तो ये होता है, याद रखिए, ये होता है रिटेनिंग। आया बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेनिंग, राइट। अब रिटेन नहीं करते हुए इसकी नेगोशिएबिलिटी को यूज करके, क्या यूज कर रहे हो आप यहां? इसकी नेगोशिएबिलिटी को यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो? लेट मी स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिस्काउंट द बिल। याद रखो, यू कैन डिस्काउंट द बिल। Okay, now question arises, sir, what is meant by discounting the bill? क्या होता है सर डिस्काउंट करना? मैंने बोला मेरे को भी कुछ जल्दी नहीं था, इसीलिए मैं क्या कर रहा था? रिटेन कर रहा था। आप समझ लीजिए मेरे को जल्दी आ गई है, अब पैसे मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं लोगों के साथ पैसे पूछा पर बैंक से नहीं मिला, बैंक बोलता है कि कुछ सिक्योरिटी दे दो। जब मेरे पास कुछ सिक्योरिटी नहीं है तो मैं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक सिक्योरिटी की तरह यूज करता हूं। मैं क्या बोलता हूं बैंक को जाके, देखो बैंक वाले मैनेजर बैंक, देखो मैनेजर साहब, मुझे मेरा डेटार जो है 3 महीने बाद कुछ पैसे देने वाला है, लेकिन मुझे अभी पैसे की जल्दी है, तो आप क्या कीजिए, मुझे आप पैसे दे दीजिए और मैं आप 3 महीने बाद सीधा उसके पास से कलेक्ट कर लीजिए। मैं उसको बोलूंगा तुम मुझे मत दो यार, तुम किसको दे दो? बैंक को दे दो। तो बैंक बोलता है ठीक है साहब, हम ये कर सकते हैं, पर आपको 3 महीने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यही इंटरेस्ट जो हमारे पैसे से डिडक्ट होता है, तो इसी को ही कहा जाता है डिस्काउंट, क्योंकि आप अपनी खुद की बिल की वैल्यू कम कर रहे हैं, राइट। व्हाट यू आर डूइंग, you are reducing the value of your own bill, that is called as, for example, you went, assume that the bill value what you have is 20,000. You went to bank approaching them to discount the bill and they will return you, assume it will be based on a percentage, मैं just roughly बता रहा हूं आपको कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट कट करके आपको पैसे कितने दिए? 19,500 दिए, राइट। तो आपने क्या किया? आपने खुद की बिल की वैल्यू को कम कर दिया ना, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। ओके, यू आर डिस्काउंटिंग योर ओन बिल। सो दिस बिल डिस्काउंटिंग, इसमें क्या हुआ? हमको जल्दी पैसे मिले, बैंक को क्या फायदा हुआ? ये 500 रुपए फायदा हुआ। इसीलिए आप देखोगे तो बैंक के सर्विसेज में एक, मतलब जो आप प्राइमरी सर्विसेज ये सब जो होते हैं, इनमें एक और सर्विस, एडिशनल सर्विस आता है, दे प्रोवाइड डिस्काउंटिंग सर्विसेज बोलते हैं। तो यही होता है डिस्काउंटिंग सर्विस। नेक्स्ट, दूसरा चीज क्या हो सकता है? आप इंडोर्स कर सकते हैं। नाउ सवाल आता है, सर व्हाट इज मीन्ड बाय एंडोर्समेंट? ये बहुत ही आसान है एंडोर्समेंट, सिंपल मैं बता देता हूं, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं इसको। आप समझ लीजिए, आपने किसी को क्रेडिट पे बेचा है, इसीलिए वो आपको पैसे देने वाला है, लेकिन अगर आपने किसी के पास क्रेडिट पे खरीदा होता तो हुआ होगा, तो आप उनको पैसे देने वाले रहेंगे, तो ही विल बी योर क्रेडिटर, राइट। तो बिजनेस में ऐसे होते हैं, आप किसी से लेने वाले रहते हो, आप किसी को देने वाले रहते हो, ये तो बिजनेस में धंधा है भाई, चलता रहता है सब, राइट। तो ये जो एंडोर्समेंट है, क्या है ये? एंडोर्समेंट,
ओके, तो एंडोर्समेंट जो होता है इसमें क्या होता है, आप अपने बिल को किसी को आप दे सकते हो टू डिस्चार्ज योर ऑब्लिगेशन। आप किसी का ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने के लिए आप ये दे सकते हो, इसमें क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। कैसे किया जाता है, मैंने बोला था ये जो बिल जो इंस्ट्रूमेंट है इसके पीछे में लिखा जाता है, आप किसको देना चाहते हो उसका नाम लिखिए और अपना साइन कर दीजिए, बस हो गया, एंडोर्स हो गया। ओके, सो क्या हो जाएगा, एंडोर्समेंट हो जाएगा। ओके, सो नाउ एंडोर्समेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर समझ लीजिए आपका जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे आप मतलब ऐसे बिल्स बहुत आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो ऐसे वक्त पर आप क्या करते हो, एक बैंकर को क्या बना देते हो, कलेक्टिंग बैंकर बना देते हो, उसे क्या कर देते हो, कलेक्टिंग बैंकर। और जो वो काम करता है उसको कहा जाता है कलेक्शन। क्या कहा जाता है, कलेक्शन। तो यू विल अपॉइंट अ बैंकर टू कलेक्ट ऑल योर बिल्स। मतलब आपको आप बोलते हो ये क्या झंझट पे पड़ना, इतने सारे बिल रहते हैं, ड्यू डेट याद रखना ये, लेकिन बैंक का काम ही यही रहता है। तो वो आप यू कैन चूज योर बैंकर एज ए कलेक्टिंग बैंकर एंड ही विल बी कलेक्टिंग योर बिल। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास कोई बिल आता है यहां, तो आप उसको कहां रूट कर देंगे, बैंक को रूट कर देंगे। तो बैंक वो पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा कर देगा। ये सब केसेस आपको समझ में आए हैं, तीनों केसेस। सो दिस इज कॉल्ड एज कलेक्शन सर्विस। इफ यस, आप ग्रुप में एस बोल के लिख दीजिए। क्या आपको ये सारे तीनों केस समझ में आ गया है, डिस्काउंट क्या होता है, एंडोर्समेंट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, राइट। क्योंकि जब ये चीज आपको क्लियर रहेगा ना, तो आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। आप एक एक चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, वो कोई भी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, पूरे लर्निंग में विजुअलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ, नाउ अब आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ये समझ में नहीं आया तो आप बता दीजिए। देखिए ये मैं पीयूसी में शायद इतना डिटेल में आपको बताया था या नहीं था, मुझे याद नहीं है। तो याद रखिए, पहले जब बिल रिटेन हुआ था, राइट, तो पहले बिल क्रेडिटर के पास था, क्रेडिटर के पास वापस आया, राइट। तो डेटार ने उसको पैसे दिया, डेटार ने उसको पैसे दे दिया, सही बात है। पेमेंट करते वक्त कौन किसको करेगा, डेटार क्रेडिटर को पैसे देगा और क्रेडिटर के पास से बिल ले लेगा, याद रखिए। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? यस आप कह सकते हैं या नो कह सकते हैं, कुछ भी आपका रिप्लाई हो। ये समझाना क्लास में होता तो आप सबका एक्सप्रेशन, आप सब मुझे ऐसा फील होता है कि आई मिस द क्लास। हाँ, ये आप समझ सकते हैं, लास्ट में कौन किसको पे करेगा, डेटार विल पे टू क्रेडिटर, बराबर है। देन डिस्काउंटिंग में क्या होता है, क्रेडिटर जो है अपना बिल डिस्काउंट करके किसको दिया रहता है, बैंक को, सही बात है। डिस्काउंट करने के बाद बिल किसके पास रहता है, बैंक के पास रहता है। और ये बैंक को पेमेंट कौन करता है, डेटार। अल्टीमेटली याद रखिए, पेमेंट करने वाला कौन होता है, डेटार ही होता है। ओके, देन जब बात एंडोर्समेंट की होती है, तो क्रेडिटर अपना बिल उसके क्रेडिटर को दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एंडोर्सी बोलते हैं। मैं इसको ई लिखता हूं, एंडोर्सी, राइट। तो ये एंडोर्सी को कौन पे करेगा, डेटार पे करेगा। ओके, एंड जब कलेक्शन के लिए जाता है तो क्रेडिटर अपना बिल बैंक को ही भेजा रहता है और बैंक को फिर कौन पे करेगा, डेटार। लेकिन याद रखिए,
ये बैंक को पे करता है, इससे ज्यादा वो क्रेडिटर को ही पे करता है, बिकॉज बैंक इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर. हियर बैंक इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर, हियर बैंक इज द इंडिपेंडेंट पर्सन. पर यहाँ बिल बैंक कलेक्शन के लिए जब होता है ना, तो तब क्या होता है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट ही विल बी पेइंग इट टू बैंक, ही विल बी पेइंग इट टू बैंक हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर. नाउ अब देखिए, फर्स्ट केस में मैं थोड़ा अलग कलर का मार्कर लेता हूं तो ताकि इजीली समझ में आए आपको. फर्स्ट केस में क्या होता था, क्रेडिटर को पैसे मिले, नेक्स्ट केस में बैंक को मिले, बाद में किसको मिले, इंडोर्सी को मिले, और लास्ट में किसको मिले, बैंक. तो याद रखिए, डेटर जिसको पैसे देता है, ही इज कॉल्ड एज पेई. क्या कहा जाता है, पे. तो इसीलिए एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज इट नेसेसरी दैट ड्रॉवर एंड पेई सेम रहे? नो, क्योंकि ड्रॉवर कौन होता है, क्रेडिटर. ड्रॉवर विल रिमेन सेम, बट पेई चेंज होते हैं, क्योंकि इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी ट्रांसफर्ड. और वो जिसके पास पैसा होता है, पैसे उसी को दिया जाता है, एंड दे विल बिकम पेई. इधर आप ये केस में देख सकते हैं. हैव यू अंडरस्टूड दिस? इफ यस, प्लीज रिप्लाई. और आप रेस भी हैंड्स रेस कर सकते हो, बेस्ट है, वो भी कर सकते हो आप. Okay, are you clear? I hope you are clear with the entire concept, right? Now, अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में we will have, कल से आपका क्लास 1 घंटे का रहेगा. ये इनिशियल क्लासेस जो थे मैंने इनको कम टाइम का रखा था, राइट? अमिता, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, Amita, have you understood the concepts clearly? Yes, sir. Risha, have you understood the concepts? Yes, sir. Bhagya, Yes, sir. Nagraj, Yes, sir. ಪಕ್ಕ ತಿಳಿದದಪ್ಪಿ? ಹಾ ರೀ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು PU ನಾಗಿನ್ಕಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿನಪ್ಪಿ. We have went in detail. ಹಾ, ಎಸ್ ಸರ್. Right? ಇದು